Hello everyone, I Samriddhi Malviya welcome you all to my channel. Today we are going to discuss about air pollution, its causes, impacts and control, which is a very important topic for the UGC NET JRF exam. So without wasting much time, let's get started. So air pollution. Air pollution is the release of pollutants such as gases, particles, biological molecules, etc. into the air that is harmful to human health and the environment. So by definition, it is air pollution is the release of pollutants such as gases, particles, biological molecules in the air which is harmful to the human health and the environment. There is a certain percentage of gases present in the atmosphere. An increase or decrease in the composition of these gases is harmful to the survival. This imbalance in the gaseous composition has resulted in an increase in Earth's temperature, which is also known as global warming. So what are the causes of air pollution? That it leads to global warming. Now, types of air pollutants. Basically, there are two types of air pollutant, primary pollutant and secondary pollutant. So the air pollutants are classified into two basic types. First comes is the primary pollutant and the second one is the secondary pollutant. So what are these primary pollutants? The pollutants that are directly released into the air or that directly cause air pollution are known as primary pollutants. तो क्या होता है कि ये pollutants क्या होते हैं कि डायरेक्टली एयर में रिलीज होते हैं, यानी कि ये किसी भी रिएक्शन के थ्रू नहीं बनते हैं बल्कि ये डायरेक्ट होते हैं. इनकी सोर्स क्या होती है? डायरेक्ट एयर पोल्यूशन को कॉज करती है. Examples of primary pollutants include carbon monoxide, oxides of nitrogen that is NOx, NO, sulfur oxides, sulfur dioxide, volatile organic compounds that is VOCs, and aerosols, dust, ash, salt, particles. So these are the examples of the primary pollutants. Then come secondary pollutants. Now these are the pollutants which are formed by the intermingling and reaction of primary pollutants. तो primary pollutants हमारे क्या थे? जो कि directly release होते हैं. और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हमारे क्या होते हैं? ये रिएक्शन जो हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं उनके साथ जो रिएक्शन होता है उनकी इंटरमिंगलिंग से यानी उनके मिक्सचर से हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं. एग्जांपल्स आर ozone which is formed by the hydrocarbons and oxides of nitrogen combined in the presence of sunlight, जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है? स्मॉग बनता है. तो ये क्या होता है हमारी, और स्मॉग किस लिए बनता है? क्योंकि ओजोन का रिलीज होता है. तो ओजोन का रिलीज हमारा कैसे होता है? क्योंकि ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है एज अ पॉल्यूटेंट, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब प्रेजेंट है. लेकिन क्या होता है? ओजोन हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है क्योंकि ये बनता है हमारे हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिएक्शन से. तो जो बनता है हमारा ओजोन बनता है. NO2 which is formed as NO combines with oxygen in the air and acid rain. Acid rain भी हमारा क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है. क्यों? क्योंकि ये क्या होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर. जो भी चीज हमारी रिएक्शन के थ्रू यानी कि जो भी पॉल्यूटेंट हमारे रिएक्शन के थ्रू बनते हैं उन्हें हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं. अब जैसे एसिड रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? हमेशा हमने सुना है कि SO2 और NO2 के रिएक्शन के साथ होते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एक में बनता है, एक में HNO3 बनता है यानी कि नाइट्रिक एसिड. तो इन्हीं के रिएक्शन से हमारा जब वाटर रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से तो हमारा क्या बनता है? H2SO4 एंड HNO3. तो ये भी हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया. नाउ क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई मस्ट टेल यू कि हर बार यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो वी शुड नो दैट देयर आर 6 criteria pollutants. To protect public health and welfare nationwide, the CA requires EPA to establish National Ambient Air Quality Standards, that is NAAQS, for 6 criteria pollutant or common air pollutants, जिनको हम criteria air pollutants बोलते हैं. So these pollutants are, पहली हमारी क्या हो जाएंगी? Particulate matter हो गया, then हमारा ओजोन हो गया, then carbon monoxide, then sulfur dioxide, then नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड फाइनली लेड. तो ये हमारे क्या हो गए? 6 क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स हो गए. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए. Now we'll get to know one by one. First comes particulate matter, that is PM. As we all know, PM हमारे कैसे होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, PM10 and PM2.5. That is particulate matter 10 and particulate matter 2.5. और ये किस बेसिस पे होता है? हमारे
पार्टिकल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके साइज के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं. सो पर्टिकुलेट मैटर और पीएम इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट केमिकल्स. तो ये हमारे क्या हो गए, पर्टिकुलेट मैटर क्या हमारा मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का, जो कि 100 ऑफ डिफरेंट केमिकल अलग केमिकल से बने होते हैं. इनमें से कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, सम पार्टिकल सच एज डस्ट, डर्ट, सूट और स्मोक आर लार्ज और डार्क इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई. तो पर्टिकुलेट मैटर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स है डिफरेंट केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके बनता है. इनमें से जो हमारे डस्ट है, डर्ट है, सूट है, स्मोक है, ये क्या होता है, ये हमें दिखते हैं आंखों से. क्या स्मोक, क्या फ्यूम्स स्मोक के दिखते हैं. हमारे डस्ट क्या है जो है हमें दिखता है, डर्ट है वो भी हमें दिखता है. अदर्स आर सो स्मॉल that they can be only detected using an electron microscope. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे PM10 और PM2.5 यहाँ पे कैटेगराइज किए गए हैं, जो कि ऐसे होते हैं जो हमें नजर नहीं आते नेकेड आई से. तो PM10 में क्या हो गया, इनहेलेबल पार्टिकल्स होते हैं विद डायमीटर जनरली 10 माइक्रोमीटर एंड स्मॉलर. तो यहाँ पे क्या हो गया कि साइज के बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं. तो PM10 हमारा क्या हो गया, जनरली 10 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटे होते हैं और ये इनहेलेबल पार्टिकल्स होते हैं. PM2.5 फाइन इनहेलेबल पार्टिकल्स होते हैं विद डायमीटर जनरली 2.5 एंड स्मॉलर. तो ये और भी ज्यादा फाइन होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं. देन कम्स ओजोन. एज वी ऑल नो कि ओजोन हमारा क्या था, हाइड्रोकार्बन और नॉक्स के जो मिक्सचर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसकी प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ओजोन की फॉर्मेशन होती है. ओजोन से हमारा क्या होता है, स्मॉग की फॉर्मेशन होती है. और जो हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं. और जो हमारी सनलाइट की एब्सेंस में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल स्मॉग बोलते हैं. नाउ ओजोन इज अ गैस कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ये क्या है हमारा, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है. ओजोन अकर्स बोथ इन अपर एटमॉस्फेयर एंड एट ग्राउंड लेवल. जैसे कि हम जानते हैं कि ओजोन क्या होता है, एक होता है हमारा ट्रोपोस्फियरिक ओजोन जो कि हमारा ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, और एक हमारा क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन. तो जो ट्रोपोस्फियरिक ओजोन होता है उसकी भी फर्दर कैटेगराइजेशन हम क्या करते हैं, गुड एंड बैड में कैटेगराइज करते हैं. तो जो हमारा गुड ओजोन है वो हमारा स्ट्रेटोस्फियर में फाउंड होता है जो कि नेचुरली प्रेजेंट रहता है, और जो हमारा बैड ओजोन है वो हमारा कहाँ होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है. यानी कि जो हमारा इसकी वजह से बनता है, हाइड्रोकार्बन और नॉक्स की रिएक्शन के साथ जो बनता है उसे हम बोलते हैं बैड ओजोन. इन द अपर एटमॉस्फेयर ओजोन शील्ड अस फ्रॉम सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फियर है वहां पे क्या होता है, गुड ओजोन होती है. क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, गुड ओजोन बोलते हैं. बट एट ग्राउंड लेवल, जो हमारी ग्राउंड लेवल पे ओजोन होती है वो क्या होती है, हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है एंड इज द मेन इंग्रेडिएंट इन स्मॉग. तो जो हमारी स्मॉग में जो ओजोन पार्ट प्ले करती है, यानी कि जो बैड ओजोन पार्ट प्ले करती है वो क्या होती है, ग्राउंड लेवल पे वो बनती है. सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यूवी की प्रेजेंस में स्प्लिट हो रहे हैं. एक ऑक्सीजन एटम बन गया, एक ऑक्सीजन. फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, सिंगलेट जो हमारा ऑक्सीजन है वो एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारा क्या बना रहा है, ओजोन की फॉर्मेशन कर रहा है. Now health and environmental effects. Ozone in the air we breathe can harm our health, as we all know. People mostly risk from breathing air containing ozone include people with, अब इनमें कौन कौन सी होती है, एस्थमा हो गया, चिल्ड्रन जो होंगे वो सफर करेंगे, ओल्डर एडल्ट होंगे, एंड पीपल हु आर एक्टिव आउटडोर, जो कांस्टेंट अंदर बाहर कर रहे हैं. यानी कि जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग को वर्क करना है या हम लोग को स्कूल जाना है, तो कांस्टेंट हम लोग क्या होते हैं, बाहर की कंडीशन से अपने आप को वो कर रहे हैं, इफेक्ट करवा रहे हैं. तो उसमें क्या हुआ, अगर ओजोन की कंसंट्रेशन हुई तो हम लोग इफेक्ट हो जाएंगे, स्पेशली जो हमारे आउटडोर वर्कर्स हैं जिनका बाहर का काम होता है. ब्रीदिंग ओजोन कैन ट्रिगर अ वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग चेस्ट पेन हो सकता है, कफिंग, थ्रोट इरिटेशन एंड एयरवे इन्फ्लेमेशन. इट कैन ऑल्सो रिड्यूस लंग फंक्शन, भी हमारा ये खराब कर सकता है, एंड हार्म लंग टिश्यू. Ozone can worsen bronchitis, eczema and asthma, leading to increased medical care. ओजोन में ये सारी चीजें कॉज होती हैं, लेकिन ये सब भी हमें मेमोराइज करना जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स इन एग्जाम दे आस्क कि किस तरीके की डिजीजेस हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकते हैं, या सिंगल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन में कि ओजोन क्या कॉज करता है. तो ये हमें जानना जरूरी है. जैसे ब्रोंकाइटिस को बढ़ाता है, एंजाइमा को बढ़ाता है, और एस्थमा को भी ये बढ़ाता है. Now comes third one is carbon monoxide. So carbon monoxide हमको पता है कि इनकम्प्लीट कंबशन से ही बनती है ये फॉसिल फ्यूल्स के. So here we go.
Carbon monoxide is an odorless gas that can come from the incomplete combustion of fossil fuels. तो जो हमारा fossil fuels का incomplete combustion होता है boilers या engines में, उसके थ्रू ये बनती है, but primarily as a result of automobiles, trucks and buses, इसके थ्रू बनती है. Then carbon monoxide found in higher concentration, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ज्यादा concentration में, in poorly ventilated parking garages में, tunnels में और areas of higher traffic volumes and congestion, usually caused by traffic signals in an area surrounded or enclosed by buildings. तो जहाँ पे जो हमारी एरिया सराउंडेड या एनक्लोज होगी बिल्डिंग्स के साथ, वहाँ पे हायर वॉल्यूम्स में पाए जाते हैं. The buildings create a canyon effect and entrapping CO in a confined place. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि confined यानी कि जो हमारी की फ्री लिविंग स्पेस नहीं है, काफी कंजेस्टेड है, हर तरफ से यहाँ पे बिल्डिंग 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 यहाँ पे बनी हुई है. तो यहाँ पे क्या होता है, इस एरिया में कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रैप हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैनियन इफेक्ट होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी सफर करते हैं लोग, उनको क्या होता है, मतलब कि वो सफर करने लग जाते हैं इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से. क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एज वी ऑल नो क्या होती है, ज्यादा एफिनिटी रखती है हेमोग्लोबिन के साथ, कंबाइन करके क्या बनाती है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको इंटरफेयर करके. Now comes sulfur dioxide. Sulfur dioxide largely comes from burning fossil fuels, हमारे coal and oil के burning से होती है, by power plants जो हमारे निकलते हैं, and other industrial facilities from burning diesel fuel in vehicles. So यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स पूछते हैं हमेशा एग्जाम में कि ये कहाँ से निकलता है. तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स तो याद रहता है, पर ये नहीं याद रहता कहाँ से. तो बाय पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड फ्रॉम बर्निंग डीजल फ्यूल इन व्हीकल्स. यानी कि हमारा क्या हो गया कि जो पावर प्लांट्स हैं उनमें भी, और जो डीजल फ्यूल हमारा जो व्हीकल्स के थ्रू होता है उनसे भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है. Highly reactive gases are those that have high potential to change in composition under certain conditions of pressure, temperature or light, or upon contact with another chemical. Then other sources of sulfur dioxide include, इनमें क्या क्या हो जाएगा, जो कि industrial process such as extracting metal from the ore, जैसे हम ore से metal extract करें उनमें भी sulfur dioxide निकलता है. Burning of high sulfur fuels by locomotive से जो हमारा sulfur निकल रहा है, large ships जो हमारी है उनसे निकल रहा है, एंड नॉन रोड इक्विपमेंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये पूछते हैं कि हमारी सल्फर डाइऑक्साइड की सोर्सेज क्या है. तो ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की सोर्सेज, जैसे हम ओर से अगर मेटल एक्सट्रैक्ट करें तो निकल रहा है, हाई सल्फर फ्यूल्स के बर्निंग पे निकल रहा है, लोकोमोटिव से जो निकल रहे हैं, हमारे शिप से भी निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, उनसे भी, एंड नॉन रोड इक्विपमेंट से. देन कम्स NO2, that is nitrogen oxide. Nitrogen oxide is a group of highly reactive gases known as नाइट्रोजन ऑक्साइड. दैट इज हम लोग क्या जानते हैं, नॉक्स के नाम से जानते हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनमें आ जाती है. When NOx in certain VOC, that is volatile organic compound, chemically react in the presence of strong sunlight, they form ozone or smoke. तो जो हमारा ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स हमारे क्या होते हैं, नॉक्स के साथ रिएक्ट करके हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में स्मॉग बनाते हैं, यानी कि ओजोन बनाते हैं, उससे हमारा स्मॉग बनता है. NOx primarily is a result of burning fuels in utility and industrial boilers as well as automobiles and trucks. तो जो हमारे automobiles और trucks होते हैं उनमें से भी जो pollutant निकलता है वो क्या होता है, हमारे यही निकलते हैं, NOx ही निकलते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ही निकलते हैं. Then lead तो हम सब जानते हैं पेंट्स में हमारे यूज होता है आजकल, तो इसीलिए पेंट्स भी lead free पेंट्स आने लगे हैं. Lead is a heavy metal that can cause adverse health effects either through ingestion or direct inhalation. ये तो सीधा सीधा है. While sources of lead emissions vary throughout the country, major sources of lead, अब हमारे lead के क्या हो जाएंगे, lead contaminated soil भी होता है, dust होंगी, आपके paints होंगे, transportation sources होंगे using lead in their fuels. क्यों? क्योंकि उनके पास lead का combination के साथ वो यूज कर रहे हैं. कोल कंबशन होगा, स्मेल्टर्स होंगे, सबसे ज्यादा lead acid battery manufacturers, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेड के सोर्स में. एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटर जो होंगे, यानी कि हमारा जो इंसिनरेटर है जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को बर्न करा, उससे भी लेड का क्या होता है, लेड निकलता है. दैट्स ऑल वी हैव फॉर एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल. आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं. बाकी के जो टॉपिक्स रह गए उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. चैनल को तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.